Hello students, now we are going to start the practical question of bank reconciliation statement. Now as you know, a business organization keep a record of their cash and bank transactions in a cash book. The cash book also serves the purpose of both the cash account and the bank account and shows the balances of both at the end of a period. Once the cash book has been balanced, it is usual to check its detail with the record of the firm's bank transaction as recorded by the bank. तो बैंक जो फर्म्स ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है उसे हम टाइम टू टाइम यूजली जो है वो चेक करते हैं. टू इनेबल दिस चेक द कैशियर नीड्स टू इंश्योर द कैश बुक इज कम्प्लीटली अप टू डेट एंड अ रीसेंट बैंक स्टेटमेंट और विच इज़ कॉल्ड द बैंक पासबुक हैज़ बीन obtained फ्रॉम द बैंक. तो एक आपके पास कैश बुक एंड अनदर वन इज़ द पासबुक. सो अ बैंक पासबुक इज़ अ कॉपी ऑफ द बैंक अकाउंट as shown by the bank records. This enables the bank customer to check their funds in the bank regularly and update their own records of transactions that have occurred. The amount of balance shown in the passbook or the bank statement must tally with the balance as shown in the cash book. But in practice, these are usually found to be different. Hence, we have to ascertain the causes of such difference. And it will be observed that a bank statement or the passbook shows all the deposit in the credit column and deposits in the and withdrawal in the debit columns. Thus, if deposit exceeds withdrawal, it shows a credit balance, and if withdrawal exceeds the deposit, it will show the debit balance. Now, and then a statement that is prepared to know the differences between all these cash book and passbook, that is called bank reconciliation statement, which tells us about the differences between the cash book and the passbook that is caused by their timing differences or maybe the error made by the business or by the bank. So let us do an example. By an example we will make it more clear how the bank reconciliation statement is to be prepared. So this is an example. On 30th June 2016, the bank column of Anil cash book showed a balance of rupees 8,250. Clear? अब बैलेंस जो है कैश बुक का वी हैव गिवन 8,250 और एग्जामिनेशन जब किया कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का, out of the total checks 8,000 issued, check 5,800 have been presented for payment up to 30th June 2016. मीन्स सबसे पहले तो हमारे पास है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है आपके पास वो 30th June 2016 की है. सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th June 2016. In which we have the two columns. The one is the debit one, means plus side, and the credit one. Now we have given the balance as per the cash book. Balance as per cash book we have given 8,250. तो हमारे पास डेबिट बैलेंस कैश बुक का गिवन है 8,250. नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. तो फर्स्ट जो आपके पास डिफरेंसेस आ रहा है जो स्टेटमेंट है वो आपके पास सबसे पहला था कि आउट ऑफ द टोटल चेक्स 8,000 इशूड, चेक्स 5,800 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30th June 2016. यानी कि जब चेक इशू किए 8,000 किए तो कैश बुक में क्या एंट्री हुई, चेक इशू किया 8,000 का तो कैश बुक में जो एंट्री हुई क्रेडिट साइड में, क्योंकि चेक इशू किया तो 8,000 फर्स्ट एंट्री जो आपकी 8,000 कैश बुक में मेंशन कर दी. लेकिन पासबुक में 30th June तक सिर्फ जो चेक जो थे प्रेजेंट हुए थे पेमेंट के लिए वो हुए थे 5,800. क्लियर है? देखो अब दोनों में क्या ट्रांजेक्शन हुआ. कैश बुक ने जब चेक इशू किया
तो अकाउंटेंट ने कैश बुक के क्रेडिट कॉलम में मेंशन कर दिया 8000 क्रेडिट हो गया जब चेक इशू हुआ, लेकिन पासबुक में 30 जून तक सिर्फ जो अमाउंट प्रेजेंट हुआ, जो चेक्स प्रेजेंट हुए वो 5800 के हुए। इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पर पासबुक के अंदर 2200 जो है, कैश बुक में 2200 जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो क्रेडिट किया हुआ है। लेकिन हमें जो चलना है, हम वी आर गोइंग फॉर दी, हमारे पास है डेबिट बैलेंस एज पर दी कैश बुक। तो हमें जो भी बैंक रिकन्सिलेशन के अंदर चेंजेस, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जस्ट टू नो दी पासबुक और कैश बुक में क्या डिफरेंस है। पासबुक में 2200 जो है वो कम डेबिट किया हुआ है, लेकिन यहाँ जो आपने माइनस कर रखा है, यहाँ आपके पास 2200 जो है वो एक्स्ट्रा क्रेडिट किया हुआ है। तो इसे हम वापस क्या कर देंगे, जितना हमारे पास एक्स्ट्रा क्रेडिट है दैट इज़ टू बी डेबिटेड टू रिकनसाइल द स्टेटमेंट विद दी पासबुक। अगर आपको पासबुक से मैच करना है कैश बुक को, तो पासबुक जो एक्स्ट्रा क्रेडिट है दैट इज़ टू बी डेबिटेड, तो आप इसे डेबिट कर देंगे। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30 जून। तो जो चेक प्रेजेंट किए थे कैश बुक से वो 8000 थे, लेकिन पासबुक में जितने चेक प्रेजेंट हुए वो हुए सिर्फ 5800 के। तो 2200 के चेक्स जो हैं वो वापस डेबिट हो जाएंगे। देन सेकेंड एंट्री आपके पास है, आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटेड टू 6000 सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, 4100 चेक वर क्रेडिटेड अप टू 30 जून 2016। 30 जून तक सिर्फ पासबुक में 4100 के चेक जो है वो क्रेडिट हुए हैं, लेकिन जब बैंक कलेक्शन के लिए हमने भेजे तो कैश बुक के अंदर जब सेकेंड की एंट्री हुई, कलेक्शन के लिए जब चेक भेजे दैट वाज ऑफ 6000 में कैश बुक के अंदर हमने साथ साथ एंट्री कर दी, लेकिन पासबुक में जब चेक जो थे, जो कलेक्शन हुई है चेक्स की, वो जो क्रेडिट हुआ है दैट वाज ओनली 4100। तो आपके पास जो पासबुक है वहाँ पे प्लस 4100 है, क्रेडिट 4100 है। सो अगर पासबुक में क्रेडिटेड 4100 है तो कैश बुक में भी आपका डेबिट 4100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डेबिट कितना है 6000। सो टू मैच विद द पासबुक वी हैव टू क्रेडिटेड दी 1900। तो 1900 जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में हम क्रेडिट कर देंगे 1900 और यहाँ आपके पास आ जाएगा चेक्स सेंट फॉर कलेक्शन but not credited by the bank up to 30th जून। क्लियर? तो आपकी ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गई, ये आपकी सेकेंड। नाउ थर्ड जो डिफरेंस है आपके पास, ऑन 28th जून our customer deposited 3500 direct in the bank account but it was entered only in the passbook। तो एक कस्टमर ने जब डायरेक्ट डिपॉजिट कराया पासबुक में, अब एक कस्टमर जब डायरेक्ट डिपॉजिट करा रहा है पासबुक में, तो पासबुक में जब एंटर होगा तो क्रेडिट साइड में एंटर होगा। तो पासबुक में उसने कितना एंटर किया, डायरेक्टली डिपॉजिट कराया 3500। अब ये जो एंट्री थी वो पासबुक में हुई है लेकिन कैश बुक में नहीं हुई, और हमें मैच करने के लिए क्या कर रहा है, रिकनसाइल करना है बिकॉज कैश बुक और पासबुक को। तो अगर पासबुक में क्रेडिट है तो कैश बुक में भी डेबिट हो जाएगा। सो वी हैव टू डेबिटेड इन दी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में हमने इसको डेबिट कर दिया 3500 डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इन दी बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे 3500 प्लस हो गया। देन नेक्स्ट वी हैव डेबिट साइड ऑफ अनिल कैश बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय 100। डेबिट साइड ऑफ अनिल कैश बुक, अनिल की जो कैश बुक थी यानी कि उसका जो बैंक कॉलम था उसकी जो डेबिट साइड है दैट वाज ओवरकास्ट बाय 100। ये आपके पास ओवरकास्ट है। अभी मीन्स कि अगर ये ओवरकास्ट है आपके पास, यहाँ पर ये डेबिटेड ज़्यादा है, तो आप इसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बिकॉज आपके पास सिर्फ पासबुक में तो इसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है लेकिन कैश बुक में ये ओवरकास्ट है। तो ओवरकास्ट को करने के लिए आपने क्या करना है, इसे क्रेडिट।
तो ये आपके पास हो जाएगा डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, सो इट इज़ टू बी क्रेडिटेड बाय 100। तो ये आपका क्रेडिट हो गया। देन आपके पास है नेक्स्ट, नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैश बुक फॉर द रेंट 800 पेड बाय द बैंकर्स अकॉर्डिंग टू द अनिल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। अब कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई है, लेकिन पासबुक में 800 का रेंट पे किया बैंकर ने। जब बैंकर ने रेंट पे किया कितने का, 800 का रेंट पे किया, तो पासबुक में जो था वो उसका डेबिट हो गया होगा। जब डेबिट हुआ यानी कि विड्रॉल हुआ, तो कितना विड्रॉल हुआ, 800 जो था, ये 5th ट्रांजेक्शन थी। 5th ट्रांजेक्शन में 800 जो है वो पासबुक में से डेबिट हुआ है। अगर पासबुक में डेबिट है, इसका मतलब कैश बुक में क्या होगा, क्रेडिट। लेकिन कैश बुक में तो कोई एंट्री नहीं हुई थी, तो हमने कैश बुक को मैच करना है पासबुक के साथ। तो अगर यहाँ पर डेबिटेड है, सो कैश बुक का ही आपका क्या होगा, क्रेडिटेड। तो अगेन 800 इज टू बी credited by the rent paid by bank according to instructions। तो 800 का रेंट जो था वो पे कर दिया, सो इट इज़ टू बी क्रेडिटेड। क्लियर? आफ्टर दैट द पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ 320 फॉर इंटरेस्ट। अब पासबुक के क्रेडिट में 320 इंटरेस्ट का है। पासबुक का क्रेडिट यानी कि इंक्रीज है 320 फॉर इंटरेस्ट एंड अ डेबिट ऑफ 40 रुपीज़ फॉर बैंक चार्जेस, बट दीज हैव नॉट बीन एंटर्ड इन दी कैश बुक। अब आपके पास बैंक पासबुक में 320 रुपीज़ जो है वो क्रेडिटेड है और 40 रुपीज़ जो है बैंक चार्जेस के वो डेबिटेड है। अगर आपका पासबुक का क्रेडिट है तो कैश बुक को आपको क्या करना है, डेबिट। तो कैश बुक के डेबिट में आ जाएगा 320। यहाँ आप यहाँ पे इसको मैच करने के लिए कैश कॉलम में 320 जो है वो डेबिट करेंगे। सो ये आपके पास आ जाएगा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, और 6th की जो सेकेंड एंट्री थी 40 रुपीज़ जो बैंक चार्जेस पे किए गए थे, तो दैट इज़ टू बी क्रेडिटेड फॉर दी बैंक चार्जेस। क्लियर? तो इन दिस वे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड, जिसमें सबसे पहले आपने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिया 8250। अब आपने सभी जो है ट्रांजेक्शन्स को चेक करना है, जो डिफरेंसेस हैं उनको चेक करना है। और बिकॉज आपके पास डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक था, तो अकॉर्डिंग टू दी पासबुक जो है वो आपको कैश बुक के अंदर जो रिकनसाइल करने के लिए, जो उसे आपने मैच करने के लिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करी है, तो अकॉर्डिंग टू द पासबुक आपने कैश बुक को उससे जो है वो मैच करना है। तो अगर कैश बुक के अंदर आपका क्रेडिट है तो पासबुक में डेबिट कर दीजिए, पासबुक में डेबिट है तो कैश बुक में क्रेडिट कर दीजिए। और अगर पासबुक में डेबिट या क्रेडिट नहीं है, बट इवन अगर कैश बुक में डेबिट या क्रेडिट है और दैट एंट्री वाज नॉट पास्ड इन दी पासबुक, सो दैट टू बी रिवर्स्ड इन दी कैश बुक, तो वो कैश बुक में रिवर्स हो जाएगी। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, वी आर गोइंग टू चेक। अब आपके पास डेबिट बैलेंस जो एज पर कैश बुक था 8250, देन 2200, आफ्टर दैट 3500, देन 320, इसका जो टोटल आपके पास आया 14270। तो कैश बुक का जो डेबिट है वो 14270 है एंड क्रेडिट इज़ 2840। इट मीन्स डेबिट बैलेंस आपके पास जो कैश बुक है 11430, विच इज़ इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये आपका डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दैट विल बी इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये आपका डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट केस व्हेन यू हैव गिवन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक।